आप सबका स्वागत है रिवाइवर ग्रुप की ऑनलाइन एए मीटिंग में, जो हम हर शुक्रवार को शाम को 9 से 10:30 बजे तक करते हैं। 12 स्टेप्स पे चर्चा करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं लक्की जी और कुशन जी। तो मैं रीडिंग कंटिन्यू करता हूँ। सो पुशन, इज देयर एनी स्पेशल थिंग? हमने 116 के पहला पैराग्राफ किया था और लक्की जी के हिसाब से आई शुड स्टार्ट फ्रॉम एज when वी we मेक develop स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। when we develop ना एज वी मेड यस, स्पिरिचुअल व्हेन वी प्रोग्रेस से डेवलप, स्टार्ट कर ले। लेकिन या व्हेन वी डेवलप, लकी जी ने बोला कि एक पैराग्राफ पीछे से लेने के लिए। हाँ ठीक तो है। ओके, as we made spiritual progress, we saw through these policies. It became clear that if we ever were to feel emotionally secure among grown-up people, we would have to put our lives on a give and take basis. We would have to develop the sense of being in partnership or brotherhood with all those around us. We saw that we would need to give constantly of ourselves without demands for repayment. When we persistently did this, we gradually found that people were attracted to us as never before. And even if they failed us, we could be understanding and not too seriously affected. When we developed still more, we discovered the best possible source of emotional stability to be God Himself. We found that dependence upon His perfect justice, forgiveness, and love was healthy, and that it would work where nothing else would. If we really dependent upon God, we couldn't very well play God to our fellows, nor would we feel the urge wholly to rely on human protection and care. These were the new attitudes that finally brought many of us an inner strength and peace that could not be deeply shaken by the shortcomings of others or by calamity not of our own making. This new outlook was, we learned, something especially necessary to us alcoholics. For alcoholism had been a lonely business. Even though we had been surrounded by people who loved us, but when self-will had driven everybody away and our isolation had become complete, it caused us to play the big shot in cheap bar rooms and then fare forth alone on the street to depend upon the charity of passerby. We were still trying to find emotional security by being dominating or dependent upon others, even when our fortunes had not ebbed that much and we nevertheless found ourselves alone in the world. We still vainly tried to be secure by some unhealthy kind of domination or dependence. For those of us who were like that, A had a very special meaning. Through it, we begin to learn right relations with people who understand us. We don't have to be alone anymore. Thank you. Over to you, Lucky. थैंक यू चंदू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ Hi, गॉड आई एम Lucky. सोबर टुडे। आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके, गुड, ग्रेट। ये जो पैराग्राफ एक पीछे से हमने पढ़ा, ये इसमें बिल भावनात्मक परिपक्वता के लिए सही संबंधों पे और ईश्वर की निर्भरता को गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा है हमें। आध्यात्मिक विकास के साथ हमारी पहले की गलतियां साफ दिखाई देने लगी। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े, हमें समझ आया कि दूसरों पर हावी होना या दूसरों पर अत्यधिक निर्भर होना दोनों थे। इसमें भावनात्मक सुरक्षा नहीं मिलती। इमोशनली सिक्योर बनने का सही तरीका, बिल कहता है, गिव एंड टेक रिश्ते हैं। हमने जाना कि बड़े लोगों के बीच इमोशनली सेफ रहने के लिए हमें जीवन को लेने देने के संतुलन पर जीना होगा। गिव एंड टेक का वो आगे मतलब समझाता है कि हम दूसरों के साथ साझेदारी में रहें, उन्हें भाईचारे में दे, सम्मान दे, और हमेशा मुझे क्या मिलेगा न सोचे। हमें बार बार देना होगा बिना किसी बदले की उम्मीद से।
जब हमने ऐसा किया एक चमत्कार हुआ। बिल कहता है कि लोग हमारी तरफ पहले से कहीं ज्यादा आकर्षित होने लगे, और अगर कभी कोई हमें निराश भी करता, हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते थे, क्योंकि हम समझदार और संतुलित रहते थे। और आगे बढ़ने पर हमें द फर्दर वी डेवलप्ड, हमें भावनात्मक स्थिरता का सर्वोच्च स्रोत मिला, ईश्वर। धीरे धीरे हमें पता चला कि सच्ची भावनात्मक सुरक्षा, स्थिरता और मन की शांति किसी इंसान पर निर्भर होकर नहीं मिलेगी, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखने से मिलती है। ईश्वर का न्याय, क्षमा, प्रेम पर भरोसा करने से हमारे अंदर ऐसी स्थिरता आई जो किसी और तरीके से नहीं आती। जब हम ईश्वर पर निर्भर रहने लगे, तो परिणाम स्वरूप हम दूसरों पर हावी होना बंद कर पाए और दूसरों पर अस्वस्थ निर्भरता भी छोड़ पाए। यही एक नया एटीट्यूड, दृष्टिकोण हमें एक ऐसी आंतरिक शक्ति और शांति देता है जिसे दूसरों की कमियां या जीवन की कठिनाइयां आसानी से हिला नहीं सकती। यह बदलाव हमारे लिए अल्कोहलिक्स विशेष रूप से जरूरी था, कि शराबखोरी, अल्कोहलिज्म या शराबियत एक लोनलीनेस का अनुभव रहा है, अकेलेपन का। भले हम प्यार करने वाले लोगों के बीच थे, फिर भी हम अकेले थे, क्योंकि सेल्फ विल, स्वेच्छा से गुस्सा, नियंत्रण की चाह और भावनात्मक असुरक्षा ने सबको हमसे दूर कर दिया था। हमारी आइसोलेशन इतनी बढ़ गई थी कि हम बारों में बड़े लोग बनने की कोशिश करते थे, लेकिन बाहर आकर सड़क पर दूसरों की दया पर निर्भर हो जाते थे। हम भावनात्मक सुरक्षा को कभी हावी होकर, कभी निर्भर होकर ढूंढते रहे, लेकिन हर बार विफल हुए। ये ने हमें एक अनमोल चीज दी है, और वो है सही रिश्ते। ये में हमने ऐसे लोगों को पाया जो हमें समझते थे, जो हमारी भाषा बोलते हैं, जो हमारी पीड़ा जानते हैं और जो हमारे जैसे ही रहे हैं। यहाँ पर हमें पहली बार एहसास होता है कि अब मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। ये ने मुझे सिखाया कि हम भावनात्मक सुरक्षा लोगों पर हावी होकर नहीं, और ना ही उन पर चिपक कर होगी, बल्कि सही संबंध बनाकर पा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू लकी। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है, मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय पूछना। भूषण। आप सब लोगों की मदद से आज का दिन ठीक हो दोस्तों। मुझे ये जो 3 पैराग्राफ है बड़ा आइडेंटिफिकेशन देते हैं, क्योंकि जब भी मैं अपने बचपन की तरफ देखता हूँ, अपने ग्रोइंग ईयर्स की तरफ देखता हूँ, अपने खुद के अस्तित्व के प्रति बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता था मेरे को। हम लोग छोटे गांव में रहते थे, मेरे फादर जज थे, तो जब भी डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह या सीनियर कोई ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट छोटे गांव में, बड़े बड़े बंगले, ढेर सारी सिक्योरिटी, गांव के बाहर बंगले, ग्राउंड्स, एक अलग सा स्टेटस हुआ करता था। तो बड़े बाप का मैं छोटा औलाद, ये मेरा स्टेटस। लेकिन जब स्कूल में जाता था और मेरे कोई दोस्त नहीं हुआ करते थे, नए स्कूल में पहले से ही बनी हुई टीम्स हुआ करती थी, और मैं बाहर से आके उनके बीच में जब भी समाने का प्रयास करता, तो कई बार मुझे वो लोगों में एंट्री लेने को नहीं मिलती, और फिर मैं अपने आप के प्रति मतलब एक कि भाई आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इन लोगों के बीच में खेलने जैसा नहीं हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूं। ये भावना बड़ी प्रबल हो जाती थी। तो एक तरफ मेरे ही मन में अपने प्रति विचार करूं, तो एक तरफ मैं अपने बाप का बड़े बाप का बेटा मैं अपने आप को देखता था, प्रिविलेज्ड, बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े प्रिविलेजेस के साथ में रहने वाला, और उसी मन में दूसरा
एक लोनर था जो दोस्त नहीं बना पा रहा था या बने हुए दोस्तों को टिका नहीं पा रहा था। जैसे थोड़ी सी दोस्ती हो जाती, हमारे पिताजी का तबादला हो जाता, हम दूसरे गांव चला जाते और वो फिर पुराने दोस्त पीछे रह जाते और मैं वापस अकेला का अकेला रह जाता। तो ये जो लोनलीनेस था, जो अकेलापन था, ये अकेलेपन के कोपिंग के वजह से मैं बहुत ज्यादा सेल्फ टॉक करता था। मतलब अ, अपने ही आप के साथ में अलग अलग विचारों में खोए रहना, लोगों की जरूरत दिन ब दिन कम 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 होते जाना, अपने आप को लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में व्यक्त नहीं कर पाना, जो मन में विचार है ही अपने ही मन में दबाए रखने को सीखना, ये सब इसी दौरान मेरे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गए थे। जब भी कुछ ज्यादा ही मुझे एक्सप्रेशन का लगता था तो मैं कविताएं लिखता था या मैं कुछ एसेज लिखता था, कुछ स्टोरीज लिखता था। यानी मेरा जब भी इमोशनल एक्सप्रेशन मुझे करना था तो वो मैं लिखने द्वारा करता था, क्योंकि मैं बोलने के लिए मैं किसी को अपने उतने करीब ही नहीं समझता था। अब जब शराब आ गई, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में बम्बई आ गए हम लोग। बम्बई आने के बाद में हम लोग कुलाबा जैसी एरिया में, जहां सभी वो हाई फाई कैथेड्रल कैंपियन वाले बच्चे बच्चियां, इंग्लिश मीडियम वाले कॉन्वेंट एजुकेटेड, और मैं छोटे गांव में ये मराठी मीडियम का लड़का, वहां मुझे और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसमें एक्चुअली स्पीकिंग मैं नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। मैं वो शर्मीला सा, नहीं बात करने वाला, लोनर सा चाइल्ड था, या मैं एक बड़े बाप का बड़ी जगह पे रहने वाला, बड़े लोगों में उठ बैठ करने वाला वो लड़का हूं, ये आई वॉज नॉट रियली वेरी श्योर। और जब भी शराब आ गई जिंदगी में, तो शराब के सहारे से मेरा वो ट्रांजिशन हो गया। वो लोनर बच्चे का मैं पॉपुलर बच्चा हो गया। ढेर सारे लोग मेरे दोस्त तो बन गए, क्योंकि मैं हरकतें वैसी करता था। आई वॉज एन एंटरटेनर, जोक्स बताता, डांस करता, गाने गाता, गजल्स गाता, स्पोर्ट्स में अलग अलग भाग लेता। तो दोस्त बहुत थे, लेकिन मेरे करीबी कोई नहीं था, क्योंकि मैं वो आर्ट ऑफ बीइंग अ लोनर सीख चुका था। मैं जानता था कि किसी को भी ज्यादा करीब करने से तकलीफ होती है, तो मैं लोगों को ज्यादा दिल के करीब आने नहीं देता था। इतने सारे रिश्ते टूटे हुए थे, इतने सारे दोस्त बिछड़ चुके थे, और उसका जो दर्द था वो सहा था, और उस वजह से मैं लोगों को करीब नहीं आता था। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त होते थे जिनका मैं बेस्ट फ्रेंड होता था, लेकिन सही मायने में मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं रहता था। इनसाइड मेरे हार्ट के अंदर, मेरे मन के अंदर मैं एक लोनर ही था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि ये लोगों के सामने जो मैं दोस्ती कर रहा हूं, ये सब दिखावा है, ये मेरा असलियत नहीं है। मेरा असलियत है वो गुमसुमड़िया, वो जो गपचुप बैठने वाला, जो लिखने वाला, जो विचार करने वाला, जो शांत बैठने वाला जो है, वो मेरी असलियत है, यही मैं समझता था। और ये जब दोस्ती का, गाने का, नाचने का, खेलने का, ये सब नाटक है लोगों को जीत लेने का, ऐसे मेरे पर्सनालिटी का एक दूसरा भाग हो गया था। अब जब भी कोई दिक्कत आती थी, कोई तकलीफ आती थी, तो मेरे को बचाने के लिए मेरे पिताजी थे, जो एक बहुत सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और मैं जो लोगों में उठ बैठ रहता था वो सब पुलिस कमिश्नर, कलेक्टोरेट, म्युनिसिपल कमिश्नर, ऐसी टाइप के लोग हुआ करते थे। तो छोटी मोटी बातों का कभी तकलीफ हो ही नहीं सकता, या कुछ भी तकलीफ होगी तो मेरे पीछे बड़े 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 लोग हैं, इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस रहता था, और उस वजह से मैं ज्यादा बिंदास होता था। कई बार वो गेटवे ऑफ इंडिया के कट्टे पे बैठ के पुलिसों के सामने मैं शराब पिया हूँ, या चौपाटी पे बैठ के पूरी वो ट्रैफिक लाइट्स की वो जो गाड़ियां रहती थी उनके सामने बैठ के मैं शराब पिया हूँ। रात को, दो रात को, बेरात 2 बजे 3 बजे बॉम्बे सेंट्रल के स्टेशन पे साइकिल चलाया हूँ, और लोगों ने मुझे पकड़ा हुआ भी है, और जब ये पूछा मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या हुआ, तो छोड़ दिया।
तो मुझे एक तरफ डिपेंडेंस के अपना बाप, उसके दोस्त, उनके सब कॉन्टैक्ट्स, वो जो हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो कॉन्टैक्ट्स है, उसके ऊपर मेरा डिपेंडेंस था कि मेरे को कोई नहीं, मेरा पद कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और दूसरी तरफ मैं लोगों की दोस्ती जीतने के लिए हर उल्टी सुल्टी हरकत करता था। फिर वो ट्रेन में से लटकने से लेकर रेड लाइट एरिया में जाने से, वो जब भी वो कप परेड का कंस्ट्रक्शन जब भी चल रहा था, वहां पर जब भी पत्थर पड़े थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, वहां पर जाके खुलेआम हम लोग 2-2 गाड़ी 3-3 गाड़ी लगा के दारू की पार्टियां वहां पर ओपन स्पेस में करते थे। किसी का डर नहीं था, और मैं अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था कि कोई बिंदास हो तो मेरे जैसा। अब इस चक्कर में जब शराब बढ़ने लगी तो मेरा प्रोजेक्शन भी बढ़ने लगा। वो सेम मेरा प्रोफेशनल भी, मेरा जो मैंने एडवर्टाइजिंग करियर किया वहां पर भी मेरा प्रोजेक्शन ऐसा रहता था कि एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट, प्रेजेंटेशन करेगा, क्लाइंट जीत के लाएगा, बिंदास है, ये टाइप का इमेज मैं प्रोजेक्ट करता था। लेकिन दूसरे दिन जब भी शराब उतरती थी और मैं सोचता था कि ये साला यार मेरी तो फटी हुई हालत है, तो फिर मैं एकदम डिपेंडेंट हो जाता मेरे फैमिली के ऊपर कि मेरे को इसमें से निकालो, मेरे को बचाओ, मेरे को छोड़नी है, मेरे को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ। तो मैं पेंडुलम की तरह कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के बीच में लटकने वाला लड़का था और खुद की पहचान भूल गया था। जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और लोगों को खुलेआम अपनी गलतियां और अपनी करतूतों के बारे में खुलेआम बात करते सुना, शेयरिंग्स करते सुना, तो मुझे ऐसे लगा कि जो डीपेस्ट मेरे सीक्रेट जो मैंने दुनिया के पास से छुपा के रखे थे, मेरे बीवी के सामने से भी छुपा के रखे थे, ऐसे कैसे खुलेआम बोलने का कि मेरी फटती है, मैं डरपोक हूं, मेरे से नहीं होता है, मेरा कॉन्फिडेंस खो चुका हूं, ये कैसे बताने का। मेरे को ऐसे लग रहा था कि हाउ कैन आई बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ अननोन पीपल। लेकिन धीरे 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 मैं जब भी बोलना चालू किया अपने आप के बारे में, जो मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा अपने आप को व्यक्त करना चालू कर दिया, तो मुझे एक अजीब सी फ्रेंडशिप मिली। जो लोग मेरे दिखावे के लिए मेरे करीब नहीं थे, मेरी पर्सनालिटी से प्रभावित नहीं थे, मेरे पैसे से या मेरे प्रतिष्ठा से या मेरे क्वालिफिकेशन से प्रभावित नहीं थे, लेकिन मैं कितनी बारीकाई से अपनी जिंदगी की तरफ देख सकता हूं उससे प्रभावित होते हैं, तो मुझे एक नया पर्पस मिला। यहां पर आने के बाद में रिलीजन ने कभी भी मुझे भगवान की कल्पना सही मायने में समझाने में मदद नहीं की, लेकिन एए में आने के बाद में ही मेरे रिलीजन का और मेरे रिलीजन ने बताए हुए भगवान की संकल्पना का भी मुझे पहचान हुआ। वो एए के जरिए हुआ। एए के जरिए रिलीजियसनेस और स्पिरिचुअलिटी के अंदर का फर्क समझ में आया, और जो स्पिरिचुअल लिविंग जो है, एक पीसफुल लिविंग, लाइफ ऑफ पेशेंस, लाइफ ऑफ लव, टॉलरेंस, सर्विस, ये सब जो तत्व है, इन्हीं में ईश्वर की प्राप्ति है। ये नया तत्व एए में मिलने लगा, और मैं ये जो मेरे अंदर की जो अच्छाई थी, मेरे अंदर की अच्छाई में ही, मेरे सत्सत विवेक बुद्धि में ही ईश्वर छुपा हुआ है, या मेरे अच्छाई के जरिए ही ईश्वर काम करने वाला है, इससे मुझे सही मायने में ईश्वरीय कोई बहुत दूर की न समझने वाली संकल्पना नहीं है, बल्कि मेरे अंदर, मेरे भीतर, मेरे श्रद्धा में रहने वाली, मेरे दिल के बहुत करीब और मेरा हौसला अफजाई करने वाली, मेरी हिम्मत बढ़ाने वाली ऐसी संकल्पना है जिसके ऊपर मैं अपने आप को पूरी तरह से निर्भर कर सकता हूं, ताकि जो पुराना पोषण है, या तो एक्सट्रीमली ब्रेव या तो एक्सट्रीमली डरपोक, वो रहने की जरूरत नहीं है। अभी मैं ईश्वर के ऊपर, अच्छाई के ऊपर अपना जीवन निर्भर करते हुए जो ये जो नए तत्व प्राप्त हुए, ये तत्वों के सहारे एए में अपनी असलियत को कबूल करते हुए वो असलियत को धीरे 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 इंप्रूव करने का जो प्रक्रिया जब भी चालू हो गया दोस्तों, तो वो जो यहां पर कहा है ना कि ट्रांजैक्शंस या व्यवहार
कि सामने वाले व्यक्ति को मेरे इतना ही अधिकार है, सामने वाले व्यक्ति के भी लाइक्स डिसलाइक्स है, सामने वाले व्यक्ति को भी तकलीफें है, एम्बिशन है, होप से, एस्पिरेशन है, उसकी भी इज्जत है। ये सब चीजों के बारे में पहले कभी मैंने ज्यादा सोचा नहीं था। आई वॉज सो एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप के ऊपर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब जब ही समाज के अलग अलग स्तर के लोगों के साथ में बरोबरी का रिश्ता अल्कोहलिक्स एनोनिमस के क्लासरूम में पाया, तो समझ में आया कि भले निजी जिंदगी में लोग कुछ भी होंगे, लेकिन एए में आने के बाद में शराब से मुक्त होने के हेतु से ही हम सब जुड़े हुए और हम सब इक्वल है। हम सभी साथ में मिलके ही स्ट्रेंथ बनती है, इस बात का विश्वास हो गया। और उस वजह से जो व्यवहार, जो बाकी सदस्यों के साथ में व्यवहार बराबरी का, वहां से फैमिली के साथ व्यवहार बराबरी का, वहां से करियर में, सोसाइटी में, हर जगह पे जब भी व्यवहार बराबरी का और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव एंड टॉलरेंस का जब भी होने लगा दोस्तों, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। और मुझे समझ में आ रहा था कि ये जो न्यू स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग जो है, ये जो मुझे नई प्राप्त हुई ईश्वर की संकल्पना है, ये संकल्पना के सहारे मैं अगर ये इस प्रकार का जीवन जीता हूं तो बड़ी शांतता है, बड़ा सुकून है, बड़ा आराम है। और मैं धीरे 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 शांत होते गया, इंट्रोस्पेक्टिव होने लगा। यानी पहले बाहर के लोगों के दोष ढूंढता था, अभी खुद के अंदर के दोष ढूंढने लगा। पहले बाहर के लोगों को बदलने का प्रयास कर रहा था, अब खुद को बदलने का प्रयास करने लगा। पहले बाहर की चीजों को कंट्रोल या डोमिनेट या ओन करने का कोशिश कर रहा था। अभी एक नया वर्ड मुझे प्राप्त हुआ, लविंग डिटैचमेंट। हर चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, जो फ्रैंक वी ने मुझे एक खूबसूरत मंत्र दिया कि जब भी कर्ता भाव में है तो पीड़ा है, जब तू साक्षी भाव में आ जाएगा तो पीड़ा निकल जाएगी। तो साक्षी भाव या लविंग डिटैचमेंट, हर चीज में आई लव एवरीबडी, आई केयर फॉर एवरीबडी, बट उनके बिहेवियर के ऊपर मैं मेरा बिहेवियर डिपेंडेंट नहीं करूंगा। आज मेरे बीवी की सटकी हुई है और गुस्से में है, तो मुझे रिस्पॉन्ड गुस्से से नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड पेशेंस से ही करना है। आज मेरे मन के खिलाफ सब चीजें ऑफिस में हो रही है, तो मुझे चिड़चिड़ापन नहीं करना है, मुझे शांतता के साथ में ही आज के दिन भी समस्याओं का सुझाव निकालना है। ये सब जो तरीका, ऑब्जेक्टिविटी, एक अपने ही जिंदगी तरफ एक थर्ड पार्टी की तरफ देखने की जो प्रक्रिया है, ये मैं सीख पाया। तो ये 3 पैराग्राफ में ये पूरा जो बिलडब्ल्यू ने जो मतितार्थ दिया हुआ है, फ्रॉम अ लाइफ ऑफ आइसोलेशन टू लाइफ ऑफ ट्राइंग टू ओवरली इम्प्रेस एवरीबडी, वहां से लेकर बीच में आकर सही मायने में मैं कौन हूं, क्या हूं, किन चीजों का हूं, इसकी पहचान होना और लोगों के साथ में बैलेंस व्यवहार करना और ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंस, ओनली ट्रू डिपेंडेंस। ये जो जहां पर भी अगर मुझे होना है तो मेरी जो उच्च शक्ति की संकल्पना है, उसके जो तत्व है, उनके ऊपर 100% डिपेंडेंस रहूं मैं, तो मैं गलत नहीं जा सकता। ये सभी इसका मतितार्थ ये 3 पैराग्राफ्स में देने का प्रयास बिलडब्ल्यू ने किया है। बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स रहे। ओवर टू यू चंद। Thank you, Bhushan. Most married folks in AA have very happy homes. To a surprising extent, AA has offset the damage to family life brought about by years of alcoholism. But just like all other societies, we do have sex and marital problems, and sometimes they are distressingly acute. Permanent marriage breakups and separations, however, are unusual in AA. Our main problem is not how we are to stay married, it is how to be more happily married by eliminating the severe emotional twists that have so often stemmed from alcoholism. Nearly every sound human being experiences at some time in life a compelling desire to find a mate of the opposite sex with whom the fullest possible union can be made, spiritual, mental, emotional, and physical. This mighty urge is the root of great human accomplishments.
a creative energy that deeply influences our lives. God fashioned us that way. So our question will be this: how, by ignorance, compulsion, and self-will, do we misuse this gift for our own destruction? We AAs cannot pretend to offer full answers to age-old perplexities, but our own experience does provide certain answers that work for us. When alcoholism strikes, very unnatural situations may develop which work against marriage partnership and compatible union. If the man is affected, the wife must become the head of the house, often the breadwinner. As matters get worse, the husband becomes a sick and irresponsible child who needs to be looked after and extricated from endless scrapes and impasses. Very gradually, and usually without any realization of the fact, the wife is forced to become the mother of an erring boy. If if she had a strong maternal instinct to begin with, the situation is aggravated. Obviously, not much partnership can exist under this condition. The wife usually goes on doing the best she knows how, but meanwhile, the alcoholic alternately loves and hates her maternal care. A pattern is thereby established that they may take a lot of undoing later on. Nevertheless, under the influence of AA's 12 steps, these situations are often set right. When the distortion has been great, however, a long period of patient striving may be necessary. After the husband joins A, the wife may become discontented, even highly resentful that Alcoholics Anonymous has done the very thing that all her years of devotion had failed to do. Her husband may become so wrapped up in A and his new friends that he is inconsiderately away from home more than when he drank. Seeing her unhappiness, he recommends A 12 steps and tries to teach her how to live. She naturally feels that for years she has made a far better job of living than he has. Both of them blame each other and ask when their marriage is ever going to be happy again. This may even begin to suspect it had never been any good in the first place. एक्चुअली ट्यूशन मेरी बीवी भी बोलती कि यार तू जब दारू पी रहा था वही अच्छा था. थैंक यू. क्योंकि आगे वो चला भूल गया गई है एक तो और. दारू पीने के टाइम पे कितना मिजरेबल था वो भूल चुकी है हाँ वो. चंदू, एक पैरा और, बाद में हम सिंगल अल्कोहलिक्स पे आ रहे हैं. Okay. Compatibility, of course, can be so impossibly damaged that a separation may be necessary, but those cases are the unusual ones. The alcoholic realizing what his wife has endured and now fully understanding how much he himself did to damage her and his children nearly always takes up his marriage responsibilities with a willingness to repair what he can and to accept what he can't. He persistently tries all of 8, 12 steps in his home, often with fine results. At this point, he firmly but lovingly commences to behave like a partner instead of like a bad boy. And above all, he is finally convinced that reckless romancing is not a way of life for him. Thank you. ओके. सो इस पैरा में बिल जब अल्कोहलिज्म की मार पड़ती है तो शादी में क्या अननेचुरल सिचुएशंस हो सकती है उसके बारे में बात करता है कि जब अल्कोहलिज्म किसी परिवार को पकड़ लेता है तो विवाह के रिश्तों में अप्राकृतिक और असंतुलित स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो शादी की साझेदारी को पूरी तरह बिगाड़ देती है. पति शराबी हो जाए तो शादी का संतुलन टूट जाता है. जब पति शराबियत का शिकार होता है तो पत्नी धीरे धीरे घर की मुखिया बन जाती है. उसको घर की मुखिया बनना पड़ता है. वही घर संभालती है, वह कमाती भी है, क्योंकि पति उतना सक्षम रह नहीं जाता है. पति धीरे धीरे एक बीमार गैर जिम्मेदार बच्चा बन जाता है. और जैसे जैसे अल्कोहलिज्म में बढ़ता है, पति मुश्किलों में फंसता है, दूसरों पर बोझ बनता है, जिम्मेदारी नहीं लेता है, और इसका फलस्वरूप ये होता है कि घर परिवार का सारा भार पत्नी पर पहुंच जाता है. पत्नी उसको संभालना, बचाना और मुसीबतों से निकालने में जुट जाती है.
यह भूमिका पूरी तरह अप्राकृतिक है। पत्नी की मां बन जाती है। धीरे धीरे और बिना समझे पति पत्नी की मां जैसी भूमिका निभाने लग पड़ती है। पति बेटे जैसा व्यवहार करने लग पड़ता है। अगर पत्नी पहले से ही मां की भूमिका निभाने की प्रवृत्त मैटरनल इंस्टिंक्ट की बात करता है इधर अधिक हो तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पति पत्नी की बराबरी वाली साझेदारी संभव ही नहीं है। शराबी पति पत्नी की इस देखभाल को कभी प्यार से स्वीकारता है तो कभी उससे नफरत करता है। कभी पत्नी की देखभाल की प्रशंसा करता है, कभी उससे बुरा भला कहता है। यह लगातार बदलता व्यवहार रिश्ते को और बिगाड़ देता है। ये एक बड़ा ही खराब पैटर्न बन जाता है जिसे बाद में सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। बिल आगे लिखता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 12 स्टेप्स के इस स्थिति को सुधार देते हैं। ये कहता है कि सही स्पिरिचुअल काम, निस्वार्थता, इन्वेंटरी, अमेंड्स भावनिक परिपक्वता की ओर ले जाते हैं के माध्यम से ये विकृत रिश्ता भी ठीक हो सकता है। कई विवाह जो लगभग टूट चुके थे 12 स्टेप्स की वजह से फिर से स्वस्थ बने हैं। आगे अगले पैरे में लिखा है कि जहां बहुत गहरी विकृति डिस्टॉर्शन होने पर सुधार में समय लगता है। यदि विवाह में बहुत लंबे समय तक अल्कोहलिज्म से प्रभावित रहा हो तो उसका संतुलन लाने में धैर्य, समय और लंबी मेहनत लगती है। जब पति ए में शामिल होता है और सोबर होने लगता है तो कई बार पत्नी के भीतर कई भावनाएं उठ सकती हैं, जैसे कि क्रोध, जो बदलाव मैं सालों में नहीं ला पाई वो ए ने कर दिया। असंतोष, अब यह घर से ज्यादा मीटिंग में रहता है। आहत भावनाएं, मैंने सालों सेवा की और यह अब मुझे ही ए सिखा रहा है। पति कभी कभी इतना ए में डूब जाता है कि वह घर से ज्यादा बाहर रहने लग पड़ता है, जो पत्नी के लिए और चोट पहुंचती है। पति जब पत्नी को 12 स्टेप समझाने लगता है तो पत्नी स्वाभाविक रूप से सोचती है, मैंने सालों तक घर चलाया, तुमसे तो मैं कहीं बेहतर जीती आई हूँ। ऐसे में दोनों एक दूसरे को दोष देने लगते हैं और कई बार ये सवाल उठता है कि ये शादी कब ठीक होगी। कभी कभी तो ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारी शादी शुरुआत से ही खराब थी। कभी कंपैटिबिलिटी इतनी नष्ट हो चुकी होती है कि अलग होना ही एकमात्र रास्ता लगता है। लेकिन ए में ऐसा ये बहुत कम मामलों में होता है। ज्यादातर मामलों में अल्कोहलिक पति अपनी गलती स्वीकार करके विवाह को संभालने की, संवारने की पूरी कोशिश करता है। जब पति सोबर होता है और जागरूक बनता है तो उसे समझ आता है कि पत्नी ने कितना कष्ट सहा, उसने खुद कितना नुकसान उठाया, उसका बच्चों पर कैसे असर पड़ा और उसे कैसे बच्चे संभालने पड़े। इस समझ के बाद अक्सर हस्बैंड सही जिम्मेदारी लेता है, जहां संभव वहां सुधार करता है, जहां नहीं कर सकता वहां स्वीकार करता है। यह 12 कदम को घर में भी लागू करने लगता है और इसका परिणाम आमतौर पर अच्छा होता है। जब वो पति की तरह व्यवहार करता है, बैड बॉय की तरह नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसे यह समझ आती है कि बेपरवाह का रोमांस और विवाह के बाहर के संबंध उसके लिए कभी रास्ता नहीं हो सकते। कुछ सदस्यों का यस दैट्स इट, थैंक यू। इसमें मेरा एक छोटा सा अनुभव है जो बहुत ही मुझे स्ट्राइक किया पूषण, कि भाई पत्नी को गुस्सा आने लगता है कि जब पति ए में शामिल होकर सोबर होने लगता है तो जो बदलाव मैं सालों में नहीं कर पाई वह ए ने कर दिया। आई रिमेम्बर दोज डेज। बड़ी कठिनाई थी क्योंकि मैं पूरी तरह ए का पोपट बन गया था। ए ने ऐसा किया, शेरिंग ने ऐसा किया, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। एंड सडनली उसने जब वो पुड़ी निकाल के दी और मुझे बताया कि ये सब तो मेरे कारण हुआ है, और फिर बाद में मेरी भी सटक गई थी। तो ऐसे में जब विवाह में काफी सालों तक शराबीपन चलता है तो पत्नी कई जिम्मेदारियां उठा लेती है और पति तो गायब रहता है। और ऐसे में पति जब क्रेडिट किसी और को देने लग पड़ता है तो ये कुदरती है। बिल वही हमें समझा रहा है और मुझे इतना अचरज हो रहा है ये पढ़ते पढ़ते
और इसको समझते समझते कि कितनी बारीकी से संबंधों में और उस संबंध में प्रत्येक व्यक्ति के विचार जो है वो बिल ने पता नहीं कैसे काबू में किए और उसको कलम में उतारा। ये जरूर एक बड़ी ही दुनिया के बाहर की चीज जैसी लगती है। थैंक यू। ओवर टू यू पुष्य। वन सेकेंड, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। लकी जी ने जैसे बोला कि पत्नियां कहती है कि शायद हमारी शादी खराब थी, तो मीटिंग के आधे घंटे पहले मेरी बीवी का मैसेज आया था और यही लिखा था उसमें, आज से 18 साल पहले 2008 में जब हमारी शादी हुई, हमारी शादी उसी दिन से खराब है एंड ऑल दिस रियलिटी। और बिल ने ये 100 साल पहले ये चीजें ऑलरेडी लिखी है किताब में। वो मतलब इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मुझे लगता है सच में। थैंक यू। ओवर टू यू पुष्प। मेरे हिसाब से तो सब अनुभव के ऊपर है। हम जो सोचते हैं कि हम आज अनुभव ले रहे हैं, वो बिल ने कभी भी लिया हुआ था। एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ शायद लकी मिस कर गया है, पैराग्राफ नंबर 2। नियरली एवरी साउंड ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंसेस एट सम टाइम इन लाइफ। उसका जरा हिंदी भाषांतर करिए ना। मोस्ट मैरिड फॉक्स के बाद वाला पैरा 117 पैराग्राफ नंबर 3। ओके, एक मिनट Nearly लिखते हैं। every sound human being experiences at some time in life a compelling desire to find the mate of the opposite sex with whom the हाँ fullest हाँ। possible union can be made, spiritual, mental, emotional and physical. करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये जो जो 3-4 पैराग्राफ हमने पढ़े, उसका जो कोर है वो ये पैराग्राफ में है। दोस्तों, मैं मेरे बीवी को मिला कॉलेज में। मैं जब भी 3rd ईयर में था, वो टाइम पे वो 1st ईयर की 3 साल छोटी थी मेरे से। हम लोग एक डांस में मिले, तो मैं हमेशा से ही उससे बड़ा था, उम्र में बड़ा था, तजुर्बे में बड़ा था। मैं कॉलेज में काफी फेमस भी था, काफी लफड़ेबाज भी था, और ये मेरी दोस्त थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ में जिंदगी जिएगी। लेकिन हम कॉलेज में जो कहते हैं कि एक ही ग्रुप में सदस्य थे और फ्रेंड्स सब थे। धीरे 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 3-4 साल में बाकी सब फ्रेंड्स दूर दूर होते गए, हम दोनों ही बचे, और वो दोस्ती का रूपांतर प्यार में हो गया और हमने शादी तो कर ली। तो जब ये शादी कर ली, वो टाइम पे मेरे पत्नी की आंखों में ऐसा था कि ये हमारे कॉलेज का हीरो, ये हर चीज में, खेल में, डांस में, गाने में, कॉलेज डे में बहुत पॉपुलर, सब में ऐसा। तो वो पहले से ही थोड़ा सा उसको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि ये लड़के ने मेरे को सिलेक्ट क्यों किया। ऊपर से मेरी फैमिली, उसमें भी सब मेरे वो जो स्टाइल था हमारा रहने का, या मेरे फादर का जो स्टेटस था, या जो बड़े बड़े घर और वो सब पुलिस और पावर पावर वो जो सब था, तो उससे तो उसको लगा, वो तो साधारण एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में से आए थे। तो उसको ऐसे लगा कि यार ये इतने बड़े घर में इतना अच्छा लड़का, मेरे तो भाग खुल गए, ऐसा उसका एक फीलिंग था। वो ओवर ऑड थी कि उसको ऐसे लगा कि यार मेरे हैसियत से ज्यादा मुझे मिल गया। लेकिन प्यार बहुत करती थी। धीरे 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 मेरी शराबियत के बारे में उसको पता चल गया, तो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट ये थी कि मेरे प्यार की वजह से ये बदल जाएगा, मैं इसकी शराब छुड़वाऊंगी, मेरे प्यार के बलबूते पर छुड़वाऊंगी। तो नहीं जब हो रहा था, तो उसने धीरे 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 ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चालू कर दी। क्योंकि मेरी जैसी शादी हो गई, वैसे वर्चुअली मेरे माँ बाप ने हाथ झटक दिए कि अभी तू और तेरी बीवी तुम लोग संभालो, तुम लोग देख लो क्या है करके। और एग्जैक्टली ये जो पैराग्राफ है कि मैं मैच्योर था वो शादी के लिए, क्या मैं रेडी था वो शादी के लिए, क्या ये शादी का मतलब क्या है वो समझने की लायकी थी मेरी? तो नहीं दोस्तों, मेरे लिए तो मैं मेरा बैचलर लाइफ ही कंटिन्यू करना चाहता था।
मुझे ऐसे लगता वो कॉलेज के जो दिन थे और जो मौज मस्ती और दोस्त और वो लड़कियां और वो डांस पार्टीज और दारू, मुझे वही लाइफ कंटिन्यू करनी थी, मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। सो जैसे कहते हैं कि जो नॉर्मल लोग, यहाँ पर बिल डब्ल्यू बड़ी खूबसूरती के साथ में कहता है कि एवरी साउंड ह्यूमन बीइंग, यानी जो भी नॉर्मल एकदम हेल्दी आदमी रहता है, वो शादी करता है 4 चीजों के मिलन के लिए: स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल। कि जब भी हम लोग एक पार्टनर लेके आते हैं, तो ये पार्टनर मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में पार्टनर रहे, मेरे मानसिक, मेरे इमोशनल और मेरे फिजिकल, ये हर चीज में इक्वल पार्टनर रहे। ये विचार, ये सोच रहती है किसी भी हेल्दी। मैंने शादी के बारे में विचार ही नहीं किया था। मेरे को कॉलेज में ये लड़की अच्छी लगी, हम लोगों का रिश्ता कुछ साल चला, दोस्ती थी, बाद में प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। और मैं ये सब चीजों में मैंने मेरे कमिटमेंट ही नहीं थी ये चीजों की वजह से। सो जितना मेरी बीवी 100% शादी में इन्वेस्ट कर रही थी, उतना मैं वो करने से भाग रहा था। सो मैं आई वॉज द टिपिकल ब्रैट, मैं जिम्मेदारी से भाग रहा था। मुझे घर पे जल्दी नहीं पहुंचने का था और वो घंटों तक मेरा इंतजार करते बैठी थी। मैं घर पे नहीं पहुंचू तब तक खाना नहीं खाती थी, और मैं रात को 2 बजे कहीं ना कुछ तो भी पी कर कुछ खाकर पहुंचता था, उल्टियां करता था। मतलब जो भी एक व्यक्ति को प्यार लगे, नफरत लगे, ऐसी हरकतें मैं कर रहा था। तो वो जो कॉलेज की दोस्ती और प्यार था, उसके बलबूते पर वो भी एकदम आड़ के बैठी थी कि ये ऐसा नहीं है, ये बुरा इंसान नहीं है, मैं उसको सालों से जानती हूँ और मैं इसको ठीक करके रहूंगी। और ऑटोमेटिकली वो फिर मेरी हालत गंभीर होगी तो फिर मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, क्योंकि मैं खाना खाने के लायक ही में नहीं रहता था। एक दफा तो उसके घर में गया, मैं खाते खाते वो प्लेट में सो गया। जो पूरा जो प्लेट रखा था सामने, उसमें मुंह रख के मैं सो गया। मतलब उसके माँ बाप के सामने, उसके भाई के सामने भी मैंने उसकी इज्जत घलाई थी। एवरी विच वे शी वॉज ह्यूमिलिएटेड, शी वॉज रिजेक्टेड। मैं उसको फंसाता था, मैं भाग जाता था, मैं उसको पैसे नहीं देता था। मतलब जो भी गलत चीज हो सकती है, वो हर चीज मैं कर रहा था। और वो, अगर वो बराबरी का रिश्ता होता तो शायद वो तभी मुझे छोड़ जाती थी कि साला ये दोस्त बन कहलाने के लायक नहीं है, इसको छोड़ देती हूँ और चले जाती हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर कहा है कि अगर उसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट होगा और उसको, उसकी जो दोस्ती थी और उसने जो मेरा अच्छा रूप देखा था, तो उसको ऐसे लग रहा था कि नहीं, मैं इसको सुधारूंगी। और वो धीरे 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 उसकी वो मैटरनल इंस्टिंक्ट बनने लगी। वो रात को लेट तक जागने लगी, वो मेरे को रूम में बंद करके रखने लगी। जैसे कहते बुरे लड़के को ट्रीट करते हैं ना, कि नॉटी लड़के को ट्रीट करते हैं, वैसा हर चीज उसका, तेरे जेब में इतना ही पैसा रहेगा, तू मुझे इतने बजे मिलेगा, मैं तेरे को वहां से मैं तेरे को पिकअप कर लूंगी। यानी कंट्रोल, वो हर मेरे दिन के हर मोमेंट का वो कंट्रोल करने लगी। और मैं अंदर ही अंदर जानता था कि उसका प्यार है, बट मुझे रिसेंट करता था मैं कि यार मेरा फ्रीडम का तो पूरा वाट लगा दिया यार, शादी क्या कर ली साला, अभी मेरा हर घंटा मैं मेरा पूरा जिंदगी मैं अभी फ्री नहीं रह सकता हूँ। तो एक तरफ मेरी फॉल्स आइडियाज ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पहले जो मैं बेदरकार जी रहा था, लड़कियों के साथ में दोस्ती कर रहा था, या जो भी मेरा ये था, ये सब मेरा शादी के बाद में भी कंटिन्यू हो रहा था। क्योंकि मुझे ये जो डाले हुए रूल रेगुलेशन, ये कंट्रोल, ये मुझे पसंद नहीं था। बट एट द सेम टाइम जब मेरी हालत गंभीर होती थी, तो मैं उसी के पास जाता था और उसी को बोलता था, यार मेरे को, मेरी तो वाट लगी है, मेरे को इसमें से बाहर निकलने का है। मदद भी मांगता था तो उसको ही मांगता था मैं, मतलब लव और हेट ऐसा रिलेशनशिप हो गया। और शी वॉज एक्सट्रीमली, मतलब बड़ी चिंता लेके रहती थी कि इसको हो क्या रहा है। किसी को नहीं समझ रहा था, मेरे बाप को नहीं समझ रहा था, मेरे ससुर को नहीं समझ रहा था। और ये तो मेरे से छोटी, मेरी शादी होगी तो मैं 25 साल का था, ये 22 साल की लड़की थी। क्या अकल होती है 22 साल में, कुछ नहीं अकल होती है। तो ना समझने की अकल थी, ना संभालने की मैच्योरिटी थी, लेकिन अपने में से बाहर जाकर वो ये प्रयास कर रही थी।
दोस्तों, जब भी फाइनली मैं शराब रुक गया और रिहैब सेंटर में से बाहर निकला, और वो रिहैब सेंटर में जब भी मेरी वो फर्स्ट स्टेप वगैरह मैं कर रहा था और मैं पूरा मेरा रिलेशनशिप्स का इन्वेंटरी लिया, तभी मुझे ऐसे लगा था कि यार ये लड़की ने क्यों क्यों टिकी हुई है मेरे साथ में। एक कारण नहीं दिया है मैंने उसको मेरे साथ में टिके रहने के लिए। मतलब हर चीज इनमें से अगर 10% चीजें उसने की होती और मुझे बर्दाश्त करना होता था तो मैं तो कब का उसको छोड़ के चला गया होता। ये औरत ने मुझे सहा क्यों? तो एक तरफ मेरे मन में वो डर था कि ये पहला मौका मिलेगा तो ये छोड़ जाएगी, या दूसरे किसी के साथ भाग जाएगी, या मेरे बेटे को लेके जाएगी और वापस मुझे मिलने नहीं देगी। तो मेरे मन की अलग अलग इनसिक्योरिटीज, यानी सब बुराई मैंने ही की थी। इसके वजह से मेरा ही मन मुझे चेतावनी दे रहा था कि भाई कोई अच्छाई डिजर्व करने की लायकी तो तेरी है नहीं। तो अगर इसको स्ट्रीमलाइन करना है, ये करना है, तो आई हैड अ वंडरफुल स्पॉन्सर। मेरा जो इनिशियल स्पॉन्सर जो था, उसने हम दोनों को बिठा के एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट लिया, और मुझे बोला कि जो भी तेरे को उसके बारे में लगने वाली बुरी चीजें हैं और गुस्सा आता है, वो चीजें लिख के निकाल, और जो भी चीजें तेरे को अच्छी लगती है वो लिख के निकाल। और उसको भी सेम एक्सरसाइज दिया। और अभी मैं तो शराब से दूर था, सेल्फ करेक्टिव मोड में था, अफसोस था मेरे को, तो मेरे को बुराई तो कुछ दिख नहीं रही थी। गलती से एक बीवी मिली हुई है, उसको टिका सकूं तो ही बड़ी बात है, इतना मैं अभी जागा तो हो गया था। और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो तो बड़ी लिस्ट हैंड ओवर कर देगी कि साला इसका ये गलत है, इसका वो गलत है, इसका अमुक गलत है। बट सरप्राइजिंगली उसने सिर्फ इतना ही लिखा कि अगर दारू नहीं पिएगा तो जो मेरा कॉलेज का दोस्त था वो मुझे बहुत पसंद था, और उसके लिए मैंने उसके साथ में शादी की थी। और वो टाइम पे वो शराबी नहीं था। अगर वो शराब नहीं पिया तो वो मुझे पसंद था, इसीलिए तो मैंने शादी की। तो मुझे उसमें कोई गलती नहीं लगती है, खाली उसके शराबीपन की गलती लगती है। मुझे याद है जिस दिन मैं डिस्चार्ज होके घर पे आया था, रात को कुछ 7 बजे के आसपास शाम को मैं आया था। वो रात भर बैठ के मैं और मेरी बीवी ने बात की थी कि कैसा हम लोगों ने अपनी फ्रेंडशिप की 3 साल के अंदर वाट लगा डाली। कैसे वो भी चिड़चिड़ा हो गई थी, वो भी शकी हो गई थी। मेरा ही सब कारण मैं ही था। मैंने ही उसका बार बार भरोसा तोड़ा था, हर गलत चीज मैंने की थी, जो शादी में नहीं होना चाहिए वो हर प्रकार मैंने करके रखा था। तो उसको पूरा अधिकार था गुस्सा करने का। लेकिन जो मेरा ये बदला हुआ रूप था, और बदला हुआ जो उसने, शी डिसाइडेड टू गिव मी अ सेकंड चांस। तो यहाँ पर जैसे कहा है कि बहुत बुरी तरह से हम लोगों ने हमारे फैमिली संबंधों में, मैरिटल संबंधों में, सेक्स रिलेशनशिप्स में बहुत बुरी तरह से हम लोगों ने हैंडल किया हुआ है। इसके बावजूद बहुत कम ऐसी मैरिजेस है जहां परमानेंट डैमेज होता है, ब्रेकअप्स होते हैं, सेपरेशन होते हैं या डिवोर्सेस होते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारी जब भी शराब रुक जाती है और हमें एहसास होता है कि हमारे गलतियों का एहसास होता है, तो हम हम वो करने का कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इनिशियली जब भी मेरी बीवी ने जब भी वापस आने के बाद में, उसने जब भी मुझे थाना आना था रहने के लिए, मेरे भाई ने 1 महीने के अंदर ही बोल दिया कि भाई अभी तू भी शराब भी बंद किया है और तुम दोनों का हम लोगों ने इतना टाइम से संभाला है, अब हमको भी हमारा जिंदगी जीने का अधिकार है, तो तुम तुम्हारा देखो। फॉर्चुनेटली थाना में घर था, तो मैं और मेरी बीवी और 1 साल का बच्चा हम लोग थाना में रहने को आए। वो टाइम पे उसके मन में बहुत इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि मैं शराब पीऊंगा या नहीं मालूम नहीं, मैं नौकरी कर पाऊंगा या नहीं मालूम नहीं। उसका जो नौकरी था वो बच्चा हो गया, उस चक्कर में उसने जॉब में से ब्रेक लिया था, तो हाथ में पैसा नहीं था, पीछे कुछ नहीं। तो हर प्रकार की इनसिक्योरिटी उसके सामने थी, और वो उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में वो दिखाई देती थी। और मुझे वो देखकर बड़ी वेदना होती थी, और मैं उसको उसको शांत करना चाहता था, उसको पैसिफाई करना चाहता था। और मुझे याद है कि हम लोगों ने ए का प्रोग्राम भी लिया, तो ऐसे लिया कि रोज सुबह 6 बजे उठते थे, और दोनों, मैं मेरा थॉट फॉर द डे पढ़ता था, वो उसका थॉट फॉर द डे पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ में 10 मिनट का शेयरिंग करते थे चाय के ऊपर।
और वहां से दिन की शुरुआत करते थे, तो प्रोबेबली दोनों के पास कुछ नहीं बचा था. बोथ ऑफ अस वर एट द एंड ऑफ ऑल आवर रिसोर्सेस. और इसीलिए शायद ये नई पार्टनरशिप बन गई, और ये जो नए रूल्स और रेगुलेशंस जो हमारे बने कि भाई अपनी जिंदगी अगर जीनी होगी और इक्वालिटी के साथ और सम्मान के साथ में जीना होगा, तो हम दोनों को एक दूसरे थोड़ा अपना अपना रोल, पार्टनरशिप में अपना अपना रोल पूरा करना पड़ेगा. और वो रोल हम लोगों ने करना, डिफाइन करना. जब भी मेरे वजह से उसको तकलीफ हो तो वो बता देती थी, कभी उसके वजह से मेरे को तकलीफ होती तो मैं बता देता था. तो वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग. हम लोगों ने एक कसम खाई कि एक भी दिन बिना बोले सोने का नहीं. झगड़ा कितना भी हो जाए उसका मांडवली करके ही सोने का. कोई भी जो भी है वो सॉरी बोल के झगड़ा खत्म करके फिर है सोने का. ऐसे फ्यू टिप्स जो हमको मिली हुई थी, हम लोगों ने बड़ा सीरियसली उसको लिया. और धीरे 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 वो लाइफ जिसको कहते हैं ना, लाइफ ऑफ पार्टनरशिप. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सोबराइटी के बाद में मैं एकदम से जिम्मेदार हो गया, सेंसिटिव हो गया. लेकिन ये जो चार है, जो चार डायमेंशन है, उसमें से डेफिनेटली स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, ये डायमेंशंस में मैं 100% देने का कोशिश किया. फिजिकल डायमेंशन में शायद मैं थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बहका होगा, बट जब भी अकल आ गई, जब समझ में आ गई, तो जैसे बिल डब्ल्यू ने कहा है कि ये जो इंस्टिंक्ट्स का जो तुतका है, ये तुतके के लिए अपने जिंदगी का पूरा सुकून दांव पे लगाने का प्रायश्चित लिया मैंने. और वो भोगने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट रियली वर्थ इट. ये सब जो कॉस्ट हम लोग देते हैं, वो छोटे से 5 मिनट के प्लेजर के लिए जो कॉस्ट हम लोग भरते हैं, सारा जिंदगी भर का नाराजगी और इमोशनल स्कार्स हम लोग छोड़ जाते हैं. सो बहुत ही इम्पैक्टफुल और बहुत ही डीप ये पैराग्राफ है, और गिव्स अ लॉट ऑफ इंसाइट इनटू रिकवरी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप. बड़ा मजा आया ये पैराग्राफ्स को पढ़ते हुए और शेयर करते हुए. ओवर टू यू चंदू. Thank you, Pushan. Am I audible? या यस. पुशन, आपको ये बीवी के बारे में जब आप बात कर रहे थे, तो एक बहुत ही अच्छा, मेरे को बहुत जो अच्छा लगता है लाइन, बिग बुक से डॉक्टर बॉब्स नाइटमेयर चैप्टर में है ये, वो पढ़ना चाहूंगा. 2 लाइनें हैं, पेज नंबर 178 पे. फॉर सम रीजन वी alcoholics seem to have the gift of picking out the world's finest women. They should be subjected to the tortures inflicted upon them. I cannot explain. From Dr. Bob. लकी जी, एक सेंटेंस, एक टिप्पणी इस पे. लेट्स अस रीड. अगला सिंगल अल्कोहलिक्स के लिए. क्या है, लकी मे नॉट एग्री. तू ऐसे सोच रहा है कि सब लोग एग्री कर लेंगे, जरूरी थोड़ी है. वो समझ गया मैं, इसीलिए कंटिन्यू करता हूँ. नहीं, तू एग्री करता है क्या? हाँ, मैं तो एग्री करता हूँ. नहीं है भाई, है. जो साथ निभा जाए वो सच में विलक्षणी है. ओके. Okay. A has many single alcoholics who wish to marry and are in a position to do so. Some marry fellow A's. How do they come out? On the whole, these marriages are very good ones. Their common sufferings as drinkers, their common interest in A and spiritual things often enhance such unions. It is only where boy meets girl on A campus and love follows at first sight that difficulties may develop. The prospective partners need to be solid A's and long enough acquainted to know that their compatibility at spiritual, mental, and emotional level is a fact and not wishful thinking. They need to be as sure as possible that no deep-lying emotional handicap in either will be likely to rise up under later pressures to cripple them. The considerations are equally true and important for A's.
who marry outside AA with clear understanding and right, grown-up attitudes, very happy results do follow. And what can be said of many AA members who, for a variety of reasons, cannot have a family life? At first, many of these feel lonely, hurt, and left out as they witness so much domestic happiness about them. If they cannot have this kind of happiness, can AA offer them satisfactions of similar worth and durability? Yes, whenever they try hard to seek them out. Surrounded by so many AA friends, these so-called loners tell us they no longer feel alone. In partnership with others, women and men, they can devote themselves to any number of ideas, peoples, and constructive projects. Free of marital responsibilities, they can participate in enterprises which would be denied to family men and women. We daily see such members render prodigies of service and receive great joys in return. Where the profession of money and material things was concerned, our outlook underwent the same revolutionary change. With a few exceptions, all of us had been spendthrifts. We threw money about in every direction with the purpose of pleasing ourselves and impressing other people. In our drinking time, we acted as if the money supply was inexhaustible. Though between binges, we'd sometimes go to the other extreme and become almost miserly. Without realizing it, we were just accumulating funds for the next spree. Money was a symbol of pleasure and self-importance. When our drinking had become much worse, money was only an urgent requirement which could supply us with the next drink and temporary comfort of oblivion it brought. ये तो daily reflection का है. Over to you, Lucky. Yes. पहले दो पैराग्राफ जो चंदू ने पढ़े उसमें बिल बात करता है जो सिंगल अल्कोहलिक्स है उनके बारे में। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि यूएस में ए के अंदर बहुत सारी महिलाएं आती है, लगभग 25 से 30% संख्या महिलाओं की होती है, जबकि भारत में वो स्थिति नहीं है। तो ए में कई सिंगल अल्कोहलिक्स भी विवाह की इच्छा रखते हैं। कुछ ए सदस्यों की शादी फेलो ए सदस्यों से होती है। आमतौर पर यह विवाह जो अभी पढ़ा मतलब कॉमन पीड़ा, कॉमन रिकवरी और कॉमन आध्यात्मिक रुचि की वजह से बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक बिल यहाँ पे बड़ी चेतावनी देता है कि एक ही मीटिंग में एक लड़का लड़की मिलते ही प्यार हो गया, ऐसे रिश्ते समस्याएं पैदा करते हैं। सफल विवाह के लिए क्या आवश्यक है, लिखता है बिल, बोलता है दोनों पर्सपेक्टिव पार्टनर्स की मजबूत ए ग्राउंडिंग हो, यानी कि वो इनसाइड ए जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम प्रैक्टिस करते हुए पूरी तरह से ए में ऋतु हो ऐसे। दूसरा, काफी समय से एक दूसरे को जानते हों, वो ये समझे कि उनका समन्वय कॉम्पैटिबिलिटी आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर पर वास्तविक है या नहीं, या सिर्फ उत्साही है। उन्हें यह जानना चाहिए कि किसी पार्टनर में गहरे भावनात्मक घाव, बिल लिखता है इमोशनल हैंडीकैप्स, जो बाद में दबाव में उभर कर रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या। ये बातें ए वालों के बाहर शादी में भी उतनी ही जरूरी है। यदि समझ परिपक्व और समय दिया जाए तो ए सदस्यों के विवाह साधारणतः बहुत अच्छे होते हैं। अगले पैरा में जो ऐसे ए मेंबर्स हैं जिनके पास फैमिली लाइफ नहीं हो सकती है, उनको मद्देनजर रखते हुए बिल लिखता है, शुरू में ऐसे सदस्य अकेलापन महसूस करते हैं। जब सिंगल ए सदस्य देखते हैं कि कई पति पत्नी ए में खुश हैं, परिवार सुधर रहे हैं या रिश्तों में प्यार वापस आ रहा है, तो वो अपने भीतर अकेलापन महसूस करते हैं, मैं अलग हूं जैसी भावना महसूस कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या बिना परिवार के भी खुशी मिलेगी? इन सदस्यों के मन में यह सवाल आता है, क्या मुझे भी कोई गहरी और टिकाऊ खुशी मिल सकती है? तो बिल कहता है, ए का उत्तर है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन इसके लिए सक्रिय रूप से ए के जीवन में भाग लेना आवश्यक है। यानी कि
12 कदमों के आचरण का और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सक्रिय भाग लेना आवश्यक है। ए का फेलोशिप उन्हें अकेला नहीं रहने देता। धीरे धीरे ये सदस्य महसूस करते हैं कि वे अब अकेले नहीं हैं। उनके आसपास बहुत सारे दोस्त हैं, पुरुष और महिलाएं जो उनके अनुभव समझते हैं, लोग उनसे उन लोग जिन्हें उनसे कोई छुपी अपेक्षा नहीं रखते हैं, जो उनके साथ खड़े रहते हैं। यह फेलोशिप उनके लिए लगभग एक चुना हुआ परिवार बन जाता है। बिल कहता है कि जिनके पास परिवार नहीं है, उनके लिए फेलोशिप एक परिवार बन जाती है, क्योंकि उनके पास वे बड़ी ऊर्जा, समय और प्रेम सेवा में दे सकते हैं। बिल का आगे कहना है, ऐसे जो लोनर इंडिविजुअल मेंबर्स हैं जिनके पास परिवार नहीं है, क्योंकि उनके पास पति पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों की परवरिश नहीं है, घरेलू दबाव नहीं है, इसीलिए वो नए आइडियाज में, लोगों की मदद में, एक के समूह की सेवा में और कई सामाजिक रचनात्मक परियोजनाओं में गहरा योगदान दे सकते हैं। और ये बताता है कि ऐसे सदस्य अक्सर असाधारण सेवा, प्रोडिजीज ऑफ सर्विस, लिखता है बिल, करते हैं और उन्हें इनके बदले आश्चर्यजनक खुशी मिलती है। परिवार न होने का अर्थ जीवन अधूरा नहीं है। जीवन साथी न होने का अर्थ खालीपन नहीं, और एक नया तरह का अवसर भी हो सकता है। फेलोशिप में गहरे रिश्ते बन सकते हैं, अपने उद्देश्य को सेवा में ढूंढ सकते हैं, जिसकी वजह से अकेलेपन से मुक्त हो सकते हैं और एक अर्थपूर्ण, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। पैरा 35 में द पोजेशन ऑफ मनी एंड मटेरियल थिंग्स आर कंसर्न, उसके बारे में शराब से पहले और शराब के दौरान हमारी से पैसे से जुड़ी हुई सोच के बारे में बात होती है, और कैसे सोब्राइटी के बाद इसमें एक क्रांतिकारी बदलाव आ जाता है। पहले पैसे के मामले में बिल्कुल असंतुलित थे, या तो फिजूल खर्च, स्पेंडथ्रिफ्ट थे, या कभी कभी बेहद कंजूस हो जाते थे, और ये दोनों एक्सट्रीम्स में झूलते रहते थे। शराब पीने के समय हम पैसा उड़ाते थे, हर दिशा में फेंकते थे, खुद को खुश करने का और दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते थे। हम ऐसे व्यवहार करते थे जैसे पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। पीने के बाद हम दूसरे छोर पर चले जाते थे, कंजूसी की तरफ। हम अचानक अत्यधिक कंजूस बन जाते थे, हर पैसे को पकड़ कर रखते थे, लेकिन वास्तव में हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम सिर्फ अगली दारू के लिए पैसा बचा रहे थे। दिखने में कंजूसी थी, लेकिन कारण फिर भी शराब ही थी। हमारे लिए पैसा सिर्फ दो चीजों का प्रतीक बन गया था, एक प्लेजर, आनंद, दूसरा सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी कि खुद को बड़ा साबित करने का तरीका। हम पैसा इस्तेमाल करते थे दूसरों को प्रभावित करने के लिए, अपना अहंकार दिखाने के लिए और मजा लेने के लिए। पैसा हमारा साधन नहीं, हमारा मास्टर बन गया था। शराब की लत बढ़ने पर पैसा केवल एक चीज के लिए रह गया था, और वो है, जैसे जैसे अल्कोहलिज्म बढ़ता गया, पैसा सिर्फ शराब खरीदने का साधन बन गया, और बस इतना कि उस ड्रिंक से मिलने वाला टेम्पररी ऑब्लिवियन, अस्थाई भूल चल सके, जीवन के बाकी सारे उद्देश्य पीछे छूट गए। इज दैट इट, चंदू? यस, थोड़ा सा ओके। कॉकटेल हो गया है। वो रिलेशनशिप में से पैसे में घुस गया, लेकिन पैसे का आधा ही हुआ है। हाँ, पैसे का आधा ही हुआ है। मैं रुकाने वाला था चंदू को। क्योंकि अपॉन एंटरिंग एज हिज एटीट्यूड्स वर शार्पली रिवर्स्ड। वो जो करेक्ट, है वो मेन पैराग्राफ है। सोबराइटी में क्या फर्क पड़ा, वो आगे वाला पैराग्राफ है, वो मेन पैराग्राफ है। करेक्ट। सो चलिए, पैसे को एनीवे, हम बाद में लेते हैं, पैसे को हाँ, अलग से लेते हैं। एनीवे, पैसे में जाने से पहले, हम्म। तो जैसे लकी ने एप्टली कहा, हमारे यहाँ पर महिला सदस्य है ही नहीं। तो एए में आके एए मेंबरों के साथ में शादियां होने का जो सिचुएशन है, उसके बारे में ज्यादा कुछ हमारे पास तजुर्बा है नहीं। मैं सिर्फ, मेरा जो सर्विस स्पॉन्सर था, वो और उसकी पत्नी दोनों डिवोर्सी थे, और दोनों ए मेंबर्स थे, और ए में मिले, और 20 साल के सोबरिटी के बाद में यानी सर्विस स्पॉन्सर का 20 साल और उसके कुछ 13-14 साल थे, उसके बाद में उन्होंने साथ में आने का निर्णय किया।
और उनका जो मैरिज था उसमें एक लड़का पहले शादी में से दोनों का और एक लड़की दोनों की शादी में से, ऐसा उनका रिश्ता था। और मैंने वो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप देखा, यानी एक दूसरे को पूरी तरह से पूरक ऐसा रिश्ता देखा। वैसे ही मैंने एए में ऐसे भी कई रिश्ते देखे हैं जो एए मेंबर ने नॉर्मल नॉन एए मेंबर्स के साथ शादी की, ऐसे भी हमारे बीच में एक्सपीरियंसेस है। बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने अपने मैरिटल जीवन में उतारा, जो कि पत्नी को बिल्कुल आइडिया नहीं थी 12 पैरे के कदमों के बारे में या या एल के कार्यक्रम के बारे में। फिर भी पति ने अपने उस कार्यक्रम का उपयोग करते हुए एक बहुत ही अच्छा हेल्दी मेंटल इमोशनल और स्पिरिचुअल लाइफ वो पार्टनर के साथ में जिया, ऐसे भी एक्सपीरियंसेस देखे हैं। और जो इंडिविजुअल मेंबर्स, जो यंग मेंबर्स है जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी अभी तक होनी बाकी है, ये अपने आप को पूरी तरह से सेवा में दे सकते हैं, फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, छुट्टियों पे जा सकते हैं, बॉयज बॉयज मिलके उनका रिट्रीट कर सकते हैं। ये सब चीजें भी मैंने एए का एक अलग रूप ओनली बैचलर लोग जैसे एंजॉय करते हैं वो भी मैंने अनुभव किया है। लेकिन इनका मेरे पर्सनल जीवन में इसका कोई अनुभव नहीं है। तो वी विल जस्ट ऑब्जर्व दिस एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो है हमारा फाइनेंशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स फाइनेंस, एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। तो लकी ने आधा तो पढ़ लिया कि शराब पीने के दौरान मुझे याद है मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड था। अभी वो नए नए दिन थे जब भी क्रेडिट कार्ड्स आए थे। क्रेडिट कार्ड्स ये मार्केट में ही नया था, उसके पहले सिर्फ वो डायनस बिजनेस कार्ड वगैरह, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह हुआ करते थे। इंडियन कार्ड्स तभी तभी आना चालू हुए थे, लगभग 86 87 के आसपास का ये दौर रहेगा। और मेरा शादी हो गया 88 में, और 89 90 के आसपास में मेरे पास में वो एक कार्ड आया था जिसके ऊपर कुछ 35,000 रुपए की उन दिनों की लिमिट थी। अब वो बोलते हैं ना, माकड़ के हाथ में कोलित, बंदर के हाथ में अगर आप मशाल दे दोगे तो पूरा जंगल जलाएगा ही। तो मेरा बिल्कुल वैसे हो गया, क्योंकि जब मेरे पैसे खत्म हो जाते थे, देसी दारू भी पीने का पैसा नहीं होता था, तो मैं मेरा बॉब कार्ड लेके मैं 5 स्टार होटल में जाता था पीने को, क्योंकि तभी कार्ड सिर्फ 5 स्टार होटल में चलते थे, बाकी छोटी मोटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलती थी। तो मैं ताज में, लीला में, ऐसा मैं जाके दारू पीता था, क्योंकि मेरे को शराब पीने का इतना। और फिर वो उसके जो कर्जे, अब मेरा पगार कितना, उसके कर्जे कितने, उसका इंटरेस्ट कितना, और वो सब जो था वो बड़ा भयानक सिचुएशन मुझे याद है। कि या तो पीने के बाद में मैं दिलदार, कितनी बार ऐसा हुआ है कि देसी दार में मैं बैठ के देसी पी रहा हूँ, और वहां का जो हमारा जो देसी बार का मैनेजर था वो देसी नहीं पीता था, तो उसके लिए मैं क्वार्टर मंगाता था बाहर से विस्की का, और मैं वहां पर बैठ के देसी पी रहा हूँ। यानी मेरे जैसा, क्या बोलते हैं अभी, जाने दे, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। तो ग्रैंडियोसिटी जो भी मेरे को इम्पोर्टेंस दिखा, मैं दिखाना ये चाहता था कि मैं पैसे के लिए नहीं आता हूँ यहाँ। मैं आता हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे देसी दारू पसंद है, मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि मुझे ये माहौल पसंद है, ऐसा मैं मेरा इमेज में क्रिएट करता था। और फिर अगले दिन जब भी मेरा जो सैलरी था पहले 10-15 दिन में ही खत्म हो जाता था, और फिर अगले 15 दिन कैसा तो भी वो महीना निकालने का, इधर से उधर से कटिंग फिटिंग, बीवी से मांग, इधर से एडजस्ट कर, बैंक पे से निकाल, ऐसे सब लफड़े करते करते महीना पूरा करने का। तो वो जो मनी के साथ जो संबंध था, थोड़ा सा जेब में पैसा है कि एकदम जान में जान आती थी कि अब अपनी प्रोविजन हो गई, आज का अपना बंदोबस्त हो गया, 100 की नोट जेब में है, आज का बंदोबस्त हो गया। ये उन दिनों का मेरा पिक्चर रहता था। और बाद में सोब्राइटी के में आने के बाद में ये जो पैसे का जो यूज एंजॉयमेंट के लिए था, ये पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया। ओवर टू यू चंद्र। Thank you, Bhushan. Upon entering अपॉन AA,
Upon entering AA, these attitudes were sharply reversed, often going much too far in the opposite direction. The spectacle of years of waste threw us into panic. There simply wouldn't be time, we thought, to rebuild our shattered fortunes. How could we ever take care of those awful debts, possess a decent home, educate the kids, and send something by for old age? Financial importance was no longer our principal aim. We now clamored for material security. Even when we were re-established in our businesses, these terrible fears often continued to haunt us. This made us misers and penny pinchers all over again. Complete financial security we must have, or else. We forgot that most alcoholics in AA have an earning power considerably above average. We forgot the immense goodwill of our brother AAs who were only too eager to help us to better jobs when we deserved them. We forgot the actual or potential financial insecurity of every human being in the world. And worst of all, we forgot God. In money matters, we had faith only in ourselves and not too much of that. This all meant, of course, that we were still far off balance. When a job still looked like a mere means of getting money rather than an opportunity for service, when the acquisition of money for financial independence looked more important than a right dependence upon God, we were still the victims of unreasonable fears. And these were fears which would make a serene and useful existence at very financial level quite impossible. But as time passed, we found that with the help of AA's 12 steps, we could lose those fears, no matter what our material prospects were. We could cheerfully perform humble labor without worrying about tomorrow. If our circumstances happened to be good, we no longer dreaded a change for the worst, for we had learned that these troubles could be turning into great values. It did not matter too much what our material condition was, but it did matter what our spiritual condition was. Money gradually became our servant and not our master. It became a means of exchanging love and service with those about us. When, with God's help, we calmly accepted our lot, then we found we could live at peace with ourselves and show others who still suffered the same fears that they could get over them too. We found that freedom from fear was more important than freedom from want. Over to you, Lucky ji. यस, अब जैसे भूषण ने इसके पहले वाले पैराग्राफ में जो फिजूल खर्ची पे शेयर किया, बिल यहाँ पे हम ए में आने के बाद जो दृष्टिकोणों में बदलाव आता है उसकी बात करता है और जो नई समस्याएं आती है उनकी बात करता है। ए में आते ही हमारी बर्बाद पैसे को देखा तो हमें अचानक घबराहट होने लग पड़ती है। हम सोचते थे कैसे ठीक होगा, कर्ज कैसे चुकाएंगे, घर कैसे बनाएंगे, घर कैसे चलाएंगे, बच्चों की पढ़ाई, बुढ़ापे के लिए क्या बचाएंगे। पहले हम पीते वक्त पैसे उड़ाते थे और अब हम एकदम डरने लग पड़ते हैं। इस डर ने हमें फिर से कंजूस बना दिया। हम पैसे जमा करते थे, हम पैसे जमा करने की कोशिश में कंजूस बन गए, पेनी पिंचर बन गए, यानी कि पाई पाई का हिसाब रखने वाले हो गए। अब हमारा प्राथमिक महत्व इम्पोर्टेंस नहीं बल्कि सुरक्षा बन गया था। बिल यहाँ पे तुलना कर रहा है कि पहले हमें इम्पोर्टेंस चाहिए था, अब हमें सिक्योरिटी की हमारी चाह बढ़ने लगी है। हमारे मन में ये विचार आता है कि पूरी तरह आर्थिक सुरक्षा होना चाहिए, वो सुरक्षित महसूस होना चाहिए, वरना मैं सुरक्षित नहीं हूं। डर के कारण हम कई सच्चाइयां भूल गए। हम भूल गए कि बहुत से ए के सदस्य
औसत से अधिक कमाने वाले होते हैं। एक सदस्य बिल कहता है अर्निंग पावर हमारी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा होती है, और कई एक दोस्त हमें अच्छा जॉब मिलाने में मदद करते हैं या रेफरेंसेस देते हैं हमारी काबिलियत पे निर्भर होते हुए। और हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया का हर इंसान, अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक, वास्तव में असुरक्षित है। 100% आर्थिक सुरक्षा किसी के पास नहीं है। और सबसे ज्यादा बड़ा काम क्या हुआ, हम ईश्वर को भूल गए। पैसे के मामलों में हमने अपने पे ही विश्वास ज्यादा रखा, और वो भी कुछ उतना खास नहीं। पैसे के मामलों में हमने खुद पे ही विश्वास किया, इससे हम संतुलन से और दूर होते गए। पैसा केवल कमाई हो गया, सेवा का अवसर नहीं रहा। जब हम नौकरी को सिर्फ कमाई का तरीका मानने लगते हैं और उसे सेवा करने का अवसर नहीं समझते, तो हम फिर गलत दिशा में जा रहे होते हैं। जब हम आर्थिक स्वतंत्रता के लिए पैसा जमा करते हैं पर ईश्वर का भरोसा नहीं रखते, तो हम फिर डर के गुलाम बन जाते हैं। एक स्टेप्स हमें धीरे धीरे इन डरों से मुक्त कराते हैं। समय के साथ और स्टेप 10-11 की मदद से हम सीखने लग पड़ते हैं कि हमारा भविष्य तो ईश्वर के हाथ में है। हमें कल की चिंता किए बिना आज ईमानदारी से काम करना चाहिए। हम जानने लग पड़ते हैं कि हम हमें छोटे काम में से विनम्रता और खुशी से कर सकते हैं। अगर हालात अच्छे हों तो बदलाव से भी डर नहीं लगता। मुश्किलों में भी आध्यात्मिक मूल्य आ सकता है। अब हमारा ध्यान इस पर जाता है कि मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, मेरी मन की आध्यात्मिक अवस्था कैसी है, न कि मेरे बैंक में कितना पैसा है। ये सोच की वजह से पैसा हमारा मालिक नहीं, हमारा नौकर बन जाता है। जबकि यही वाक्य इसके पहले वाले पैरा में बिल ने हमें ये बताने की कोशिश की थी, जब हम फिजूल खर्ची कर रहे थे, कि पैसा हमारा मालिक बन गया था और हम पैसे के गुलाम बस पैसे के पीछे पीछे घूमते रहे थे। सोब्राइटी में अगर हम वो असुरक्षितता को टैकल नहीं करें तो फिर भी पैसा हमारा मालिक बना रहता है। जबकि इन 12 कदमों के आचरण से पैसा हमारा मालिक नहीं, पैसा हमारा नौकर बन जाता है। पैसा हमें चलाता नहीं, पर पैसे का सही उपयोग हम सीखने लग पड़ते हैं। अब पैसा प्रेम बांटने, सेवा करने, लोगों की मदद करने का माध्यम बन जाता है। ईश्वर की कृपा से बिल कहता है कि हम अपनी परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि असली आजादी डर से मुक्ति में नहीं है, न कि कितना पैसा है उसमें है। अल्कोहलिज्म में हम पैसा उड़ाते थे, सोबरिटी के बाद हम पैसा जमा करने के डर में जी रहे थे। दोनों ही अतियां थी, एक्सट्रीम एंड्स थे। और जब हमने ये समझा, असली सुरक्षा पैसा नहीं, आध्यात्मिक विकास है। ओवर टू यू भूषण। मुझे याद है जब भी सोबराइटी में जिस नौकरी में से मैं वो रिहाब में गया था, वापस वही नौकरी मैंने रिज्यूम तो कर ली, और एक 2-3 महीने बड़ा परेशान था। मतलब मैं वहां पर नॉर्मल जीना चाहता था, लेकिन लोगों के नजर में जो पहले मेरी जो एक इज्जत थी, जो मेरे पास जो जिम्मेदारियां थी, जो मेरे ऊपर जो अधिकार थे, वो सब एकदम डाइल्यूट हो गए थे, क्योंकि सबका मेरे ऊपर से भरोसा उड़ गया था। और मैं वहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जब तक मेरे पूरे अमेंड्स नहीं होते तब तक मेरा स्पॉन्सर वहां से मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहा था। 3 महीने के बाद में जब भी उसको रियलाइज हुआ कि यहाँ पर रह के मेरी सेरेनिटी भंग हो रही है, या मेरी मैं कुछ माहौल सीधा नहीं हो रहा है, या जो इम्प्रूव होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, तो उसने मुझे अनुमति दी कि ठीक है, तुम दूसरा जॉब ढूंढ लो। फॉर्चुनेटली मेरा तजुर्बा अच्छा था, क्वालिफिकेशंस अच्छे थे, तो मैंने इमीडिएटली बायोडाटा बनाए और अलग अलग इसमें भेजना चालू कर दिए। उसने एक ही कंडीशन डाल दी कि जो इंडस्ट्री में से मैं आया था, वो इंडस्ट्री में मेरा नाम पूरा बेवड़ा करके हो चुका था, तो वो इंडस्ट्री में नौकरी नहीं लेना। फिर भी मैं बोला ये बुढ़े को क्या समझता है, इसके लिए मैंने
अलग अलग बायोडाटास भेजे। एक बहुत इमीडिएटली मुझे बहुत अच्छी पोजीशन और बहुत अच्छा पगार का जॉब आया एक एड एजेंसी में, और उसने मुझे इमीडिएटली बोल दिया, भाई तू इधर जाएगा तो तेरी सोबरिटी टिका नहीं पाएगा तू। फिर मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे को बाहर निकलने का है। बोलता है ठीक है, गिव इट सम मोर टाइम। और फिर एक जॉब आया जो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का कॉर्पोरेट मार्केटिंग मैनेजर का जॉब। 7 लेवल्स ऑफ इंटरव्यूज क्लियर करके फाइनली वो जॉब मुझे मिला। मेरा मनचाहा पगार, मनचाहा टाटा सन्स के ऑफिस में ऑफिस था। यानी पैसा, प्रतिष्ठा, जो भी एक साथ में, जो भी मैंने जो सपने में नहीं सोचा था, ऐसा जॉब मुझे मिल गया। और मेरा स्पॉन्सर बोलता है क्यों लेने गया तेरे को जॉब? मैं बोला यार पैसा है, ताज ग्रुप है, मैं दुनिया भर ट्रैवल करूंगा, 5 स्टार होटल में रहूंगा। बोलते तेरा जॉब क्या है? मैं बोला कॉर्पोरेट मार्केटिंग, यानी कि कंपनियों को ताज होटल्स में उनके फंक्शंस वगैरह करने को प्रमोट करना। तो बोलता है अगर तू उनको कॉर्पोरेट्स को एंटरटेन करेगा, उनको तो बुलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, तो तू अपनी सोबरिटी कैसे रख पाएगा? तो मैं बोला मैं रखेगा रे बाबा, मैं अपनी सोबरिटी रखेगा, लेकिन मेरे को ये जॉब, मेरे को ये मैं छोड़ नहीं सकता है। वो बोला नहीं। तीसरा जॉब जो मुझे आया वो एक डूबी हुई कंपनी थी, और वो यूनियन ने बंद की हुई, वो कंपनी के ओनर ने खुद का बंगला बेच के वो दोबारा चालू की थी, और वो कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर करके पोजीशन आया। पगार कुछ ज्यादा खास नहीं था, फिर भी अच्छा था। और वो बोलता है तू ये ले। अरे बोला पागल हो गया, ये कल कंपनी बंद हो गया तो मेरे को दूसरा कोई नौकरी नहीं देगा, आई विल बी जॉबलेस फॉर एवर। तो बोलता है वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये डूबी हुई कंपनी को बचाने का प्रयास करते करते तू बच जाएगा। फाइनली मैंने वो लिया। और जैसे यहाँ पर दिया है कि पैसा ये ऑब्जेक्टिव न रखते हुए अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस, या अपने को काम करना है, या यहाँ इस कंपनी को खड़ा करना है, या प्रोडक्ट को बिकवाना है, ये जब भी ऑब्जेक्टिव हो गया तो पैसा रह गया बैकग्राउंड में, लेकिन मैं वो काम में इतना खो गया कि अगले 2 साल में वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और वहीं से मेरे को मेरा बिजनेस का आइडिया आया, और मैंने खुद का बिजनेस चालू कर दिया। यानी वो 2 साल में वो कंपनी भी तर गई, मेरा आर्थिक भी प्रगति हो गया, जो भी मेरे इनसिक्योरिटीज थी, मेरा जो कॉन्फिडेंस टूटा हुआ था वो भी वापस आ गया, इंडस्ट्री, नए इंडस्ट्री में मेरा नाम भी हो गया, और मुझे एक नए बिजनेस का आइडिया भी मिला। इतना कॉन्फिडेंस के 5,000 रुपए का कैपिटल लेके मैंने मेरा बिजनेस चालू कर दिया। वो भी पहले साल 1.5 साल में ट्रिमेंडस, मतलब अपेक्षा के बाहर मुझे सक्सेस मिलने लगा। और यहाँ पर जो दिया है कि मुझे पैसा खर्चा करने को ही नहीं आता था। मतलब बिकॉज मेरे पास कैपिटल नहीं था, नया धंधा चालू किया था, और ये धंधे को कैपिटल की जरूरत थी। तो जो मैं कमा रहा था, वो जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट को ही मैं वापस धंधे में डाल रहा था। और मैं छोटी छोटी चीजों को भी मना कर देता था। कभी 4 दिन किधर बाहर गांव जाने का है, छुट्टी मनाने जाने का है, तो वो भी मेरे, क्योंकि मेरे को इतना इनसिक्योरिटी था अंदर से कि अगर मेरा ये धंधे पे से ग्रिप छूट गया तो ये डूब जाएगा, और डूब जाएगा तो मैं क्या करूंगा? अभी नौकरी वोकरी छोड़ के मैं इसमें उतरा हूं। जहाँ बोलते हैं ना कि ट्रू पार्टनरशिप, तो मेरे बीवी ने क्या किया, वो बोली थी देख, तू भले बिजनेस करता हो या नौकरी करता हो, तो जैसे नौकरी के टाइम पे 1 तारीख को मेरे को एक फिक्स्ड अमाउंट हाथ में देता था, वैसा तो फिक्स्ड अमाउंट मेरे हाथ में देना, तो 1 तारीख को चालू कर। उसमें से उसने जो पैसे बचाए, उसमें से वो प्लान करती थी हर 4 महीने में, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं छोटा सा एक हॉलीडे प्लान करती थी, एकदम छोटा, 5,000 रुपए बजट, 15,000 रुपए बजट, 10,000 बजट, ऐसे छोटे 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 बाजू वाले हॉलीडे। लेकिन मेरे को, मैं इतना ऑब्सेस था वो क्रिएशन के पीछे, वो धंधा खड़ा करने के पीछे, वो प्रोडक्ट बिकवाने के पीछे, वो डीलर अपॉइंट करने के पीछे। पैसा कमा के मैं बड़ा आदमी होऊंगा या कितना पैसा कमाने का, ऐसा मेरे को कोई ध्येय नहीं था।
लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं क्रिएट कर सकता हूं और मैं क्रिएट करके रखूंगा। और ट्रिमेंडस इनसिक्योरिटी थी मेरे को पैसे के बारे में। उसमें 1995 में एक बड़ा नुकसान कर दिया मैंने। मेरा एक प्लेटिंग प्लांट डाला, वो मेरे को जमा नहीं, लाखों का कर्जा हो गया, लाखों का नुकसान हो गया, और मेरी पूरी हिम्मत जैसे टूट गई। वापस उसने मुझे वही बताया कि देख, और मैं नौकरी करने को चला था, मेरे को मेरे कॉम्पिटिटर ने ऑफर किया कि तेरे को 1 लाख रुपए का पगार देता हूँ और मारुति 1000 नई गाड़ी आई थी वो टाइम पे, वो नई गाड़ी देता हूँ, तो ये सब बंद कर, धंधा बंद कर, मेरा मार्केटिंग संभाल, मेरा सेल संभाल। तो दोस्तों, ये मैं उन दिनों की 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ जब लोगों को 10,000 रुपए का पगार बहुत बड़ा लगता था। तो मैं तो तैयार हो गया, मैं बोला पैसा ले लेते, कर्जा चुकता हो जाएगा, धंधा गया तेल लगाने, यार इतना पैसा मेरे को मिल रहा है तो वांदा क्या है। मेरी बीवी ने वही बोला कि तू धंधा किस लिए किया, तूने पैसे के लिए किया कि तेरे को खुद का कुछ करना था इसके लिए किया। बोला नहीं, खुद का कुछ करना था इसके लिए किया। बोला हार गया, बोले इतने जल्दी। बोला फोकस पैसे पे मत रख, फोकस काम पे रख। तेरा धंधा बेकार है क्या? बोला नहीं, धंधा नहीं बुरा है। तेरा क्या क्या गलत है? बोला कुछ नहीं, मैं बिकॉज कैपिटल नहीं है उसके वजह से मैं फंसा हुआ हूँ हर तरीके से। तो बोले वो निकलेगा बाहर, मैंने तेरे को ज्यादा पैसा मांगा है क्या, या कुछ भी ऐसा है क्या कि पैसे की वजह से तेरे को आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है ऐसा? कि नहीं, बोला मैं अगर ये टिक गया, अगर 2 साल टिक गया तो मैं आगे चल जाऊंगा। तो उसने बोला कि अगर वो पैशन तेरा अगर बिजनेस है तो पैशन के लिए बिजनेस कर, पैसे के लिए मत कर। और सचमुच दोस्तों, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और मैं जाके वो जो नौकरी ऑफर करा था उसको जब भी मना किया, वो शॉक हो गया। बोलते यार तेरे साले लक्ष्मी तेरे घर में आई और तू साले हाथ धोने को जा रहा है, क्या आदमी है? बोला नहीं, मेरे को धंधा करने का। बोला जा कर, इतना अगर तेरे को जुनून है धंधा करने का तो कर। मैं तेरे को रोकूंगा नहीं, पैसा भी नहीं मांगूंगा। और वहां से दोस्तों मैंने यूटर्न लिया, बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेट करते गया। धीरे 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 जो भी आया वो मैं धंधे में डालते गया, क्योंकि मैं पर्सनल वेल्थ ये मैं पकड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरे को जो क्रिएट करना था उसके पीछे लगा। एक पॉइंट ऐसा आया कि बहुत गलतियां की, नुकसान किया, सब कुछ किया, लेकिन वो जर्नी जब भी तुम करने लगते हो और तुम्हारा उद्देश्य पैसा कमाना या बनाना या जमा करके रखना या ये नहीं रहता है, तो वो पैशन का एक अलग एनर्जी तुमको मिलता है। और वो मैंने अनुभव किया दोस्तों। और वो करते करते तुम्हारी सब जरूरतें पूरी हो जाती है। यानी मैंने जो भी, कोई भी चीज ऐसी नहीं रही जिंदगी में जो मुझे करनी थी और मैं नहीं कर पाया पैसे के अभाव में। मैं दुनिया भर घूम सका, जो चाहिए वो कर सका, जो अच्छा घर में रह सका, अच्छी गाड़ियां चला सका, जो भी मेरे एक आम आदमी को जो भी पैसे से करने की जो सुविधाएं रहती है, वो हर सुविधा मुझे प्राप्त हो गई। उसे फोकस न रखते हुए भी वो प्राप्त हो गई। और वो कहते हैं ना, यहाँ पर बिल डब्ल्यू जो कहता है कि एक पॉइंट के बाद में पैसे के प्रति भी एक तटस्थता आ जाती है। यानी एक, जैसे आप 3 रोटी खाने के बाद में सामने आपको 2 रोटी और रखी है या 20 रोटी और रखी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी भूख 3 रोटी की थी तो तुम्हारा एक समाधान हो जाता है। तो पैसे के बारे में वैसा समाधान नहीं होता है, लेकिन उसकी जो भूख है वो भूख कम हो जाती है और दूसरे की जरूरत दिखने लगती है, और दूसरे के लिए ये पैसे का कुछ उपयोग हो सकता है, और मेरे कमाए में से मैं कुछ हिस्सा दूसरे किसी सेवा में दे सकता हूँ, ये विचार आने लगते हैं। और मेरे फॉर्चुनेटली अगल बगल में कुछ लोग भी ऐसे थे जो अच्छे दानशूर थे। मेरा खुद का ससुर जो भी कमाता था उसमें से एक हिस्सा हमेशा डोनेट करता था। उसको जो समझ में आएगा वो चैरिटी में डोनेट करता था, लेकिन करता था। और वो ये सब मैंने जब भी देखा कि अगर मुझे जो करना है वो फिर वो मेरे ए के लिए करना है या मेरे सोसाइटी के लिए करना है या मेरे समाज के लिए करना है, जो भी करना है, मेरा हिस्सा बनता है। एक अच्छे नागरिक बनने के हेतु मेरा भी हिस्सा बनता है और ये मुझे करना है। और मेरा टाइम, ट्रेजर एंड टैलेंट, ये तीनों चीज दूसरों के काम आए, ये मेरा ड्यूटी बनता है। ये जो ऑब्जेक्टिविटी है पैसे के बारे में भी, ये भी धीरे धीरे प्राप्त हो जाती है, जैसे बिल डब्ल्यू ने इन पैराग्राफ्स में कहा। ओवर टू यू चंदू। मेरे ख्याल से ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं, सो मे बी यू कैन समराइज। यस भूषण, तो दोस्तों आज की
मीटिंग यहीं पे समाप्त करना चाह रहा हूँ क्योंकि समय हो चुका है। तो हम अगले फ्राइडे को फिर से मिलेंगे 9 से 10:30 बजे और रीडिंग और डिस्कशन उस पे फिर चालू रखेंगे।